Good morning friends. Now next lecture. फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक 3 क्वेश्चंस किए थे और वो सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। उसमें सभी थियरम थे, इट मीन्स राइडर थी, प्रूव दैट के क्वेश्चंस थे। वो सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में भी हम कई सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स वेरी सिंपल। ऐसा दिया गया है, a circle touches all 4 sides of quadrilateral. A circle touches all 4 sides of quadrilateral. तो उसकी अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो ऐसी हो जाएगी। सपोज इट्स अ सर्कल, इट विल टच all 4 sides of quadrilateral. It's a, B, C or D. Circle touches all 4 sides of quadrilateral. Suppose circle touches all sides at P, Q, R and S. Okay, so now the question is what we have to prove? Angle made by opposite sides of quadrilateral at center point, they are supplementary. Again I repeat, angle made by opposite sides, it means AB and CD, angle made by AB and CD at the center point. एट द सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट के पास जो एंगल बना रहा है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम अपोजिट साइड्स आर AD एंड BC, सो सम ऑफ देम आर इट्स अ 180 डिग्री। सो इट्स वेरी सिंपल, लेट्स चेक इट। सपोज इट्स अ सेंटर पॉइंट O, सो एंगल मेड बाय अपोजिट साइड्स एट द सेंटर पॉइंट, इट मीन्स AOB, same COD. So angle made by these two opposite sides are AOB and COD. They are supplementary angles. Same here, angle made by AD and BC at the center point, they are AOD and BOC. So they are supplementary angles. So first we will write down to prove. हमें prove क्या करना है? Again as I said, what we have to prove? Angle made by opposite sides. So first, angle made by AB is what? It's a angle AOB, and angle made by CD is COD. So angle AOB plus angle COD, they are supplementary. It means sum of them is it's a 180 degree. Now second, same angle AOD plus BOC is equals to 180 degree. That we have to prove. Now proof. अब इसका प्रूफ देंगे फ्रेंड्स। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले विल ज्वाइन O and P. So OP is what? It's a radius, we know that, and also know that radius at a point of contact, so it makes 90 degree here. Same, we will join O and Q. So OQ is what? It's also radius drawn at a point of contact, so it's a 90 degree. Same, we will join O and R, so it will be 90 degree, and O and S,
so it's also 90 degree. That we prove in a 10.1. तो पहले इसको लिख लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया वही. It means what? OP is perpendicular to AB. OQ is perpendicular to BC. OR is perpendicular to CD. And OS perpendicular to AD as per 10.1. ये हमें मालूम है. इतना सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें ये प्रूव करना था एंगल AOB इज अ 90 डिग्री. सेम उस क्वेश्चन में हमने जो किया था, आपको अगर याद है तो, हमने 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रंट प्रूव किए थे बाय दी RHS. समझ में आ रहा है? सेम वही चीज़ हमें यहाँ करनी है. वी विल प्रूव दैट सपोज I give a first triangle here, it's a first triangle and it's a second. OAP and OSA. ये 2 ट्राइंगल की मैं बात करूंगा. अब जो कुछ भी बात करूंगा वो ये 2 ट्राइंगल की होगी. ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रंट प्रूव करेंगे फ्रेंड्स. समझ में आ रहा है? सो लेट्स ट्राइंगल OAP and triangle OAS. इनर ट्राइंगल OAP और इनर ट्राइंगल OAS, इसकी हम बात करें अगर ये 2 ट्राइंगल की, तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है इन दोनों ट्राइंगल में एंगल P और एंगल S क्या है? इट्स 90 डिग्री. सो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स एंगल OPA is equals to angle OSA. Reason is it's a 90 degree. Same OA or OS, they are equal. OP and OS, they are equal. Why? Radii of same circle. समझ में आ रहा है? ये दोनों भी इक्वल है. गॉट इट? और ऐसा भी लिख सकते हैं OA and OA, they are common side. OA is equals to OA, it's a common side. और एक चीज बता दो, यहां मान लीजिए कि हम ये RHS की जगह, RHS तो है ही, लेकिन RHS की जगह अगर हम यहाँ S अगर कंडीशन ले रहे हैं तब भी ये प्रूव हो सकता है. AP and AS, they are what? AP is equals to AS. It means it's a 10.2. Again I repeat, दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, बाय दी RHS और बाय दी SSS. अब SSS का मतलब क्या है? Corresponding sides are equal. So in these 2 triangle AP and AS are equal. और उसका रीजन क्या है? 10.2. They are tangents drawn from exterior point of the circle. OP and OS, they are equal. उसका रीजन क्या है? They are radius of same circle. OA is equals to OA. Why? They are common sides. So by the SSS, both the triangle are congruent triangle. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OAS. OAP is congruent to OAS. आहिस्ता इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ओके, नाउ दे आर कॉन्ग्रंट बाय द CPCT, बाय SSS. नाउ दे आर कॉन्ग्रंट. अब 2 triangles are congruent means what?
अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं यहां अलग से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, which are the two triangles? First is OPA and the second is OSA. These are the two triangles. Now they are congruent. Congruent means what? All corresponding sides are equal and all corresponding angles are equal. अब अगर all corresponding angles are equal, then we can say that angle POA is equals to angle SOA. इधर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एंगल AOP is equals to एंगल AOS. तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ therefore एंगल AOP is equals to एंगल AOS. ये दोनों इक्वल है, दिस एंड दिस. यहां मैं लिख रहा हूं 1 और इट्स अ 2. दे आर इक्वल. ये दोनों इक्वल है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, दे आर इक्वल. अब ये कैसे प्रूव किया हमने? दे आर कॉन्ग्रुएंट. अब थोड़ा सा सोचिए, ये सभी चीज हम यहां भी कर सकते हैं फॉर द थर्ड ट्रायंगल एंड फॉर द फोर्थ ट्रायंगल. तो अब ये ऐसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहां डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एज इट इज इस तरीके से. ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? इट्स अ ट्रायंगल. अगर आप यहां से स्टार्ट कीजिए तो BOP, इधर O से स्टार्ट कीजिए, OBP और OBQ. ट्रायंगल OBP is congruent to triangle OBQ. ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट. दे आर कॉन्ग्रुएंट. अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसका मतलब क्या हुआ? इसके ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो ये कौन सा एंगल है? देयरफॉर एंगल BOP is equals to एंगल BOQ. Is the first, is the second. Now same, I give it name 3 and 4 here. Third angle and fourth angle, they are equal. ये आपको याद रखना है. Third and fourth are equal. Now same, it's a fifth and sixth. Again these two triangles are equal. So which are the triangles? Triangle COQ is congruent to triangle COR. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, then these two angles are congruent. Which are these two angles? That is angle COQ is equals to angle COR. It's the third. Same, it's a 7 और it's a 8. यहाँ मैं 7 और यहाँ 8 ये लिख रहा हूँ. These two triangles are also congruent. Which are the two triangles? Triangle DOR is equals to, sorry, is congruent to triangle DOS. And therefore, angle DOR and angle DOS is equals to angle DOS. It's a fourth. अगेन इट्स वेरी सिंपल. अब आपको ये समझ में आ गया होगा. अभी आगे देखते. ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. इट्स अ फिफ्थ, सॉरी इट्स अ सेवंथ और इट्स अ एट्थ. विच आर द टू एंगल्स आर इक्वल? 1 and 2. Then 3 and 4, they are equal. Then it's a 5 and 6, they are equal. 5 and 6, they are equal. And how? They are congruent triangles. They are corresponding angles of congruent triangles. And these two angles are equal. समझ में आ रहा है? 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, they are equal. अब यहाँ मैंने आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कौन सा एंगल है? इट्स अ AOP.
2 कौन सा एंगल है? AOS। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेट, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एंगल AOP इज इक्वल्स टू 1, सपोज किया है हमने, उसको हमने 1 कहा है। एंगल AOS इक्वल्स टू 2। सेम थर्ड कौन सा है? एंगल BOP इज इक्वल्स टू थर्ड। फोर्थ कौन सा है? एंगल BOQ इज इक्वल्स टू 4। फिफ्थ हमने किसको कहा है? एंगल COQ इज इक्वल्स टू 4। सॉरी फिफ्थ है, इट्स अ फिफ्थ। सिक्स्थ कौन सा है? COR, एंगल COR इज 6। DOR, एंगल DOR इज 7 और एंगल DOS इज 8। समझ में आ रहा है? इट मीन्स व्हाट? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय दिस, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। समझ में आ रहा है? अगर आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं भी लिख रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी आंसर तो आएगा ही, उसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम कैसे लिखने वाले हैं? ओके, एक सिंपल चीज़ हमें मालूम है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो उसके पास ये जो सर्कल बन रहा है, ये वाला सर्कल, वो पूरा कितना डिग्री होगा? सर्कल कितने डिग्री का होता है? इट्स अ 360 डिग्री। तो उसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी का सम क्या होगा? इट्स अ 360 डिग्री। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360। इन सभी का सम क्या हो जाएगा? इट्स अ 360 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, वी नो दैट circle have 360 degree. Okay, now what? Angle 1 and angle 2 are equal. 1 is what? AOP and 2 is AOS. They are equal. तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ 1 है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 2, और जहाँ एंगल 2 है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो हम 2 की जगह क्या लिख देंगे? 1। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1। ओके, पहले ये सोच लीजिए, हमें ये प्रूव करना है पहले। सो एंगल AOB जो है, एंगल AOB, उसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? 1 and 3। और एंगल COD है, उसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? 6 and 7। जो बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। AOB उसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? 1 and 3। COD उसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? 6 and 7। तो हम 1 3 6 7 इसको एज इट इज रहने देंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने एंगल है 1 3 6 7 के अलावा, उनको हम चेंज कर देंगे। तो हमें 1 तो चाहिए था, इसलिए मैंने 1 एज इट इज रखा, 2 को चेंज कर दिया। अब 3 भी चाहिए तो 3 एज इट इज रहेगा। अब एंगल 4 जो है उसकी जगह क्या लिख देंगे? इट्स एंगल 3। अब 5 चाहिए? नहीं, हमें तो 1 3 6 7 ही चाहिए, तो 5 को चेंज कर देंगे। 5 को किसके साथ चेंज करेंगे? इट्स अ 6 प्लस 6 एज इट इज। 7 चाहिए? जी हाँ, 7 हमें चाहिए। 8 चाहिए? 8 नो। सो 8 को किसके साथ चेंज कर देंगे? 7। सो इट्स अ प्लस 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट्स अ 360। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? हमें क्या चाहिए था? 1 3 6 7। 1 3 6 7 के अलावा जितने एंगल थे उन सभी को हमने चेंज कर दिया। नाउ इट्स वेरी सिंपल। 1 + 1 इट्स अ 2 एंगल 1। 3 + 3 इट्स अ 2 एंगल 3। 6 + 6 इट्स अ 2 एंगल 6 और 7 + 7 सो इट्स अ 2 एंगल 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट्स अ 360 डिग्री। नाउ फर्स्ट from the all 2 is common, so it will be angle 1 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 is equals to 360. 2 is in multiplication, it will be in a division,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 180। नाउ एज पर फिगर, आप फिगर को देखिए, जब आप एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर रहे हो तो पूरा कौन सा एंगल मिलेगा, इट्स अ AOB। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज एंगल AOB। और एंगल 6 और 7 को अगर आप ऐड कर रहे हो तो पूरा कौन सा एंगल बनेगा, इट्स अ COD। आप आपने जो फिगर ड्रॉ की है उसमें भी देख सकते हो। सो इट्स द फर्स्ट रिजल्ट। तो हमें यही तो प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया फ्रेंड्स। हमें इसी स्टेटमेंट को प्रूव करना था फ्रेंड्स। नाउ अब यही पूरी प्रोसेस दोबारा करनी है। वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब क्या करना है, अब हमें ये सेकंड वाला प्रूव करना है ना। सो एंगल AOD, उसमें कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 और 8। और एंगल BOC, इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं, 4 एंड 5। तो हम 2, 8, 4 एंड 5 ये सभी रहने देंगे उसमें। उसके अलावा जितने एंगल है उन सभी को चेंज कर देंगे। और किस में चेंज करेंगे, 2, 8, 4, 5 में। सो फर्स्ट इज व्हाट, एंगल 1, एंड वी नो दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, सो वी विल रिप्लेस एंगल 1 बाय एंगल 2. 2 will be as it is, we don't want 3, so 3 is replaced by 4, so it's a 4 plus 4. Also we don't want 5, sorry, we want 5, but we don't want 6, so 6 will replace by 5. 7 we don't know, so 7 is replaced by 8, plus 8 is equals to 360. सभी सेम चीज ही है, 2 एंगल 2, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8 equals to 360. Now 2 is common, so it will be angle 2 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 8 equals to 360. So angle 2 plus यहाँ कट हो जाएगा 2 180, और इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180. अब एंगल 2 और एंगल 8 को हम ऐड करते हैं तो कौन सा एंगल बन जाएगा, पूरा एंगल AOD बन जाएगा. और एंगल 4 प्लस 5 कौन सा है, 4 और 5, ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, इट्स एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180. तो ये भी प्रूव हो गया. आपको लास्ट में क्या लिखना है, हैंस प्रूव दैट एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल्स टू 180, एंगल AOD प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ज़्यादातर जितना ये स्टेप किया वही सारे यही स्टेप है. और फिर यहाँ जो किया ये सभी सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. यहाँ तक पहले क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. उस हिसाब से ये फर्स्ट वाला एंगल और सेकंड वाला एंगल विच इज AOP और AOS दे आर इक्वल, ये हमने लिख दिया. अब ये दो ट्रायंगल जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, हर बार ऐसे थर्ड ट्रायंगल और फोर्थ ट्रायंगल, फिफ्थ और सिक्स, 7 और 8 वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है. इसलिए हमने क्या लिखा, सेम एज इट इज. क्या लिखना है, सेम एज इट इज. ये दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. कौन से वो ध्यान रखना है, इट्स अ OBP और इट्स अ OBQ. And if they are congruent, then angle BOP और BOQ दोनों को B से स्टार्ट करना है, ये याद रखना है, B से. BOP और BOQ they are equal. सेम ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. सो COQ और COR यहाँ B से स्टार्ट किया था तो यहाँ C से स्टार्ट करेंगे. सेम यहाँ D से स्टार्ट करेंगे. सो इट्स अ DOR एंड DOS they are equal. ओके, अब यहाँ बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एंगल AOP को क्या कहा 1, एंगल AOS को 2, BOP को 3, BOQ को 4, COQ को 5, ऐसे नेम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमें मालूम है एज पर फर्स्ट 1 and 2 आर इक्वल, एज पर सेकंड 3 and 4 आर इक्वल,
as per third, fifth and sixth are equal, and as per fourth, 7 and 8 are equal. And we know that it's a whole circle. Circle made 360 degree. So sum of all 8 angle is a 360. और उसके बाद हमने क्या क्या मालूम है, आपको सिर्फ यही सोचना है कि यहाँ 1 and 3 है और यहाँ 6 and 7 है, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, 1, 3, 6 और 7. तो हमने क्या किया, इसके अलावा जितने एंगल थे 2, फिर कौन से 4, 5, 8, इन सभी को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1, 3, 6, 7. जैसे कि 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, 8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में. ऐसे हमने सभी को कन्वर्ट कर दिया. और सेम दूसरी बार भी वही प्रोसेस की है, लेकिन उसमें हमने 2, 8, 4, 5 में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है. दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन है कुछ नहीं फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमने किया और आप देख रहे हो हमने काफ़ी आराम से किया, कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, ये सभी मैंने पहले भी कई बार बताया, ये सभी जो स्टेटमेंट हम प्रूव कर रहे हैं उसमें से कोई ना कोई MCQ बन सकता है. सपोज इसी फिगर में आपको एंगल मेड बाय वन साइड एट द सेंटर पॉइंट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एंगल मेड बाय अपोजिट साइड एट द सेंटर पॉइंट, वो फाइंड करना है. सपोज इसी फिगर में एंगल AOB इज गिवन, सपोज इट्स 80 डिग्री, देन एंगल मेड बाय CD एट द सेंटर पॉइंट O, ये हमें फाइंड करना है. तो हमें ये मालूम होना चाहिए दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो इफ द एंगल AOB इज 80 देन एंगल COD विल बी 100. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए. सो सभी क्वेश्चंस को आपको ऐसे जो स्टेटमेंट है उसको MCQ में भी समझ में आना चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A intersect to the circle at B and C, to distinct point B and C. In short, AB and AC are tangents drawn from exterior point A. मान लीजिए कि ऐसा दिया गया है. Again I repeat, AB and AC are tangents drawn from exterior point A. Okay, so उसकी फिगर ऐसी होगी फ्रेंड्स. Is the circle, is the first tangent AB and it's a AC and it's the center point O. अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए. AB और AC आप भी साथ में फिगर ड्रॉ करते जाइए. क्यों? मान लीजिए कि आपको इस फिगर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है देखने में, तो आपने जो फिगर ड्रॉ की है उसमें तो वो देख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप अपने फिगर में देख सकते हो. ओके, AB एंड AC आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A. ओके, नाउ ऐसा दिया गया है, वन मोर टेंजेंट्स, it will intersect circle, suppose at point D, and these two tangents intersect each other at point P and Q. समझ में आ रहा है? ऐसा दिया है. Again I repeat, AB and AC are the two tangents drawn from exterior point A. तो उसका मतलब क्या हुआ, A में से हमने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. ओके, नाउ थर्ड टेंजेंट्स, इट्स लाइक दैट एंड इट विल बी इंटरसेक्ट both the tangents at two distinct points P and Q, and that tangents also intersect to the circle at point D. समझ में आ रहा है? So now what we have to prove, हमें prove क्या करना है? To prove
प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये प्रूव करना है AB मीन्स व्हाट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AC, वो तो होगा ही, बिकॉज एज पर 10.2 लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटेरियर पॉइंट दे आर इक्वल, सो AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। अगेन इसको अच्छी तरीके से समझिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिया ही होगा। अगेन समझने की कोशिश कीजिए। AB मीन्स व्हाट, इट्स अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू AC। इक्वल्स टू AC क्यों किया, वी नो दैट both are equal, is equals to 1/2 and perimeter into perimeter of triangle APQ। ये जो ट्राइंगल बन रहा है APQ, इसकी जो पेरीमीटर होगी उसका हाफ है। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ये तीनों टेंजेंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी जो पेरीमीटर है उसका हाफ है। इसका मतलब समझिए, पहले तो आप ये याद रखिए कौन किसका हाफ है और कौन किसका डबल है। समझ में आ रहा है? कौन किसका हाफ है और कौन किसका डबल है। ओके, टेंजेंट इज अ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। अब अगर ये जो दो है उसको हम सामने भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2AB। 2AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ इज अ ट्वाइस ऑफ AB एंड इट्स वेरी सिंपल। अगर AB इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ देन ऑब्वियस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ इज अ ट्वाइस ऑफ AB, वो तो होगा ही। समझ में आ रहा है? If x is a twice of y, then y is a half of x। ये तो आप समझ ही सकते हो। अब ये हमें प्रूव करना है। How can we prove it? अब इसका हम प्रूफ देंगे फ्रेंड्स। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। कहाँ से स्टार्ट करना है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो हम ये जो दोनों टेंजेंट्स है उसका हम सम कर देंगे। इसका मतलब है लाइक दैट AB प्लस AC, इन दोनों का हम सम कर देंगे फ्रेंड्स। क्या किया, याद रखिए, इस फिगर में दोनों टेंजेंट्स का हम सम कर देंगे। नाउ एज पर फिगर, आप फिगर को देखिए, यहां भी देख सकते हो, आपने जो ड्रॉ किए उसमें भी देख सकते हो। अब AB की जगह अगर मैं क्या लिखूं तो वो AB ही कहलाएगा। अब गौर से देखिए, AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं। ओके, काफी बच्चों को मालूम है इट्स AP प्लस PB। आप देख सकते हो इट्स अ सम ऑफ AP एंड PB। अब प्लस सेम एज इट इज AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इट्स AQ प्लस QC। समझ में आ रहा है? AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट्स AQ प्लस QC। ओके, उसके साथ यहां हम AB प्लस इस AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB Y एज पर 10.2। AB and AC are what? They are the tangents drawn from exterior point A. So length of AB and AC are equal. तो हम AC की जगह क्या लिख सकते हैं, इट्स AB। सेम वे अब थोड़ा सा यहां गौर करके देखिए। राइट नाउ P is what? It's actually exterior point of the circle. So PB and PD, they are what? Tangents drawn from exterior point P. तो जहां PB है हम वहां क्या लिख सकते हैं, PD। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल, आप अपने फिगर में भी देख सकते हो। सेम AQ वो हम एज इट इज रहने देंगे।
Okay, for this circle, Q is also what? Q is a exterior point of the circle. So QC and QD, they are what? They are tangents drawn from exterior point Q. So QC and QD are equal. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? QD. समझ में आ रहा है? इसका रीजन हम 10.2 ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC, PB इज इक्वल्स टू PD और QD इज इक्वल्स टू QC. तो हमने क्या किया? AC की जगह AB लिखा है यहाँ, फिर PB की जगह, यहाँ PB था उसकी जगह PD लिख दिया और यहाँ QC की जगह QD लिख दिया. Now what? AB plus AB is a 2AB is equals to, now AP will remain same. अब इसको हम अरेंज कर देंगे, इन दोनों को हम पास पास में लिख देंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? AP प्लस AQ प्लस PD प्लस QD. So now it's a 2AB is equals to AP plus AQ. अब एज पर फिगर देखिए, PD प्लस DQ क्या हो जाएगा? इट्स अ PQ. अब अगर आप फिगर को गौर से देखोगे तो AP क्या है? इट्स अ वन साइड ऑफ ट्राइंगल APQ. AQ क्या है? इट्स ऑल्सो वन साइड ऑफ ट्राइंगल APQ एंड PQ इज व्हाट? वन साइड ऑफ ट्राइंगल APQ. तो इन तीनों का सम क्या है? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ, ऐसा हम लिख सकते हैं. So now 2 is in multiplication, it will be in a division. So AB is equals to 1 by 2 into perimeter of triangle APQ. तो यही हमें प्रूव करना था. देखिए, इट्स वेरी सिंपल. और उसके साथ मैंने जो बार बार बताया पहले, कौन किसका हाफ है और कौन किसका डबल है. AB is what? It's a tangent. Length of tangent is a half of perimeter of triangle APQ. और रिवर्स, perimeter of triangle APQ is a twice of, ये आप ये मत देखिए, ये वाला स्टेप देखिए. perimeter of triangle APQ is a twice of AB. तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है. इसमें MCQ भी हो सकता है. MCQ कैसे दिया जा सकता है? MCQ इसी फिगर में मान लीजिएगा आपको ऐसा दिया है, AB is equals to 5, then perimeter of triangle APQ. ओके, ऐसा भी दिया जा सकता है. So we know that perimeter of triangle APQ is a twice of tangent, so it's a 5. तो ये क्या हो जाएगा? It's a 10. अब रिवर्स कर दीजिए कि perimeter of triangle APQ is 15, then AB is equals to blank. So we know that the length of tangents is half of perimeter of triangle APQ. It's a 7.5. So इस तरीके से आपको MCQ में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है. ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. Now move on next question. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स. यहाँ हम, बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा ही है इसलिए. ओके, ये आज की हमारा सेकंड क्वेश्चन था. नाउ थर्ड क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल. ये आपको मालूम है लेकिन आपको ये प्रूव करना है. अब वो कैसे प्रूव करना है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स. अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है AB is a AB either PQ is a diameter of circle. PQ is a diameter of circle. Okay, so first हम क्या ड्रॉ करेंगे? diameter. It's a diameter. PQ is a diameter of circle. Now tangents drawn at point P and Q are AB and CD. Again I repeat, tangents drawn at point P and Q are AB and CD. So first we will draw tangents
यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, इट्स अ AB एंड इट्स अ CD। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आई रिपीट, PQ इज व्हाट? इट्स अ diameter of circle. AB and CD are what? Tangents drawn at point P and Q. So now question is what? What we have to prove actually? To prove, हमें prove क्या करना है? To prove, it's like we have to prove that AB is पैरेलल टू CD। अब हमें मालूम ही है एक्चुअली वो तो पैरेलल हो गई, ये दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है ये पैरेलल है ही। लेकिन अब हमें इसको प्रूव करना है, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? इट्स अ थियोरिकल थियरम, थोड़ा सा देखोगे तो पता चल जाएगा। इट्स अ सेंटर पॉइंट O, तो सबसे पहले क्या लिखना है? थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, AB इज अ टेंजेंट एंड P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इधर आप ऐसा भी लिख सकते हो, AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P, और उसके साथ OP इज अ रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। अगेन आई रिपीट, मैंने यहां ये लिखा है कि AB इज अ टेंजेंट एंड पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दोनों आप साथ में लिख सकते हो, AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P और OP is a radius at point of contact P. So we know that angle OPA is 90 degree. Angle OPA is what? It's a 90 degree. By how? It's a 10.1 theorem. And angle OPA is a 90 degree. That's why angle QPA is also 90 degree. It's a first result, but how? Why? PQ is a diameter. That's why PQ is a diameter. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि O और Q दोनों एक ही लाइन पे है। अगर OPA 90 है तो QPA भी क्या होगा? It's a 90, क्योंकि एक ही लाइन पे है, और it's a first result। अब ये जो सब इतने स्टेप हमने यहाँ किए, पहले किसके लिए किए? AB के लिए। क्या लिखा? AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P एंड OP इज अ रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। दैट्स व्हाई एंगल OPA इज 90, OPA इज 90। अब यही स्टेप हम CD के लिए भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इट्स अ लाइक दैट, CD इज अ टेंजेंट एट पॉइंट Q एंड OQ is a radius at point of contact Q. Now we know that if OQ is a radius at a point of Q, then OQ is a perpendicular to CD. So we can say that angle OQD is equals to 90. Angle OQD is equals to 90. It's a 10.1. अब अगर एंगल OQD 90 है तो PQD भी क्या हो जाएगा? It's a 90. So it's a PQD is equals to 90. Why? PQ is a diameter. Okay. Now it's a second result. So we can say that एंगल QPA is 90 and PQD is 90. अब आपको सिर्फ यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं कह देता हूँ, आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है।
एक्चुअली दे आर इक्वल एज पर 1 and 2, एंगल क्यू पी ए इक्वल्स टू पी क्यू डी, इतना ही लिखना है। अब उसके बाद क्या लिखना है, एक ही स्टेट में लिखना है, एक्चुअली दे आर अल्टरनेट एंगल ऑफ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी। अब आप सोचिए, और दे आर इक्वल, आपने 9th में पढ़ा है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड any one line is a transversal, then angle, alternate angle, they are equal, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगेन आई रिपीट, यहां मैं ये कह रहा हूं L and M they are parallel, L and M they are parallel and P is a transversal of L and M, then these two alternate angle are equal। अब यहां से रिवर्स कर दीजिए इस सभी स्टेटमेंट को, if these two angle are equal and it's a transversal of L and M, then L and M are parallel। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, 3 स्टेटमेंट में बोल रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट, L and M are parallel, that is given, P is a transversal and then these two angle are alternate angle, they are equal। अब रिवर्स कर दीजिए, these two alternate angles are equal and P is a transversal of L and M, then L and M are parallel। तो यहां भी वही है, these two alternate angles are equal and PQ is a transversal of AB and CD। आपको यही लिखना है, PQ is a transversal of AB and CD। पहले क्या लिखना है, alternate angle APQ and PQD are equal, they are equal and they are alternate angle made by PQ, transversal PQ of line AB and CD, and that's why आपको लास्ट में क्या लिख देना है, ये that's why AB is parallel to CD। अगेन आई रिपीट, इसके बाद क्या लिखना है, लास्ट टाइम बता रहा हूं, पहले तो ये लिखना है therefore angle QPA is equals to angle PQD by first and second reason। अब ये दोनों इक्वल है ऐसा हमने प्रूव किया, तो अब क्या लिखना है, दे आर इक्वल एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल PQ ऑफ AB एंड CD। समझ में आ रहा है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ऑफ ट्रांसवर्सल PQ ऑफ AB एंड CD, दैट्स व्हाई AB एंड CD आर पैरेलल। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमने 2 क्वेश्चंस और किए, दोनों थियरम थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट थियरम थे फ्रेंड्स, बार बार मैं ये बता रहा हूँ आप सभी को। नाउ मूव ऑन सम फ्यू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मैं सिर्फ आपको हिंट ही दूंगा और है भी कुछ नहीं, आप इजीली उसको प्रूव कर सकते हो। ऐसे कुछ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैं ऐसा दिया गया है, देयर आर 2 सर्कल which are intersect each other from the outside, और मान लीजिए कि ऐसे एक कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किया है और ऐसे भी एक कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किया है। They are tangents, it's a common tangent, it's also common tangents। Now suppose I give it name here P, Q, it is R and it's a S। Okay, now to prove, हमें prove क्या करना है, it's very simple। हमें prove यही करना है, R is a midpoint of PQ। जो लाइन सेगमेंट PQ है उसका ये मिड पॉइंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो इट्स वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी, सिर्फ 2 और 3 स्टेप में ही हो जाएगा, इट्स अ प्रूफ। अब इसको कैसे करना है, एक्चुअली R इज व्हाट फॉर दिस सर्कल, इट्स अ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। So RP and RS, they are what? Actually they are tangents drawn by R।
So as per 10.2 we know that they are equal, so length of RP is equals to RS by 10.2 is the first result. अब थोड़ा सा सोचिए तो सेम होगा, R is what for this circle, it's a exterior point of the circle, so RS and RQ they are what, again tangents drawn by exterior point, so RS either RQ is equals to RS, again it's as per 10.2 theorem, it's the second. So now by comparing both the equation, we can say that RS is cancelled, so RP is equals to RQ, and also and it's a P dash R dash Q, it means they are collinear. That's why हमें यही प्रूव करना था कि R is a मिड पॉइंट ऑफ PQ. अब ये मिड पॉइंट है, उसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ RP एंड लेंथ ऑफ RQ दे आर इक्वल, तो हमने यही तो प्रूव कर दिया है RP और RQ दोनों क्या हैं, इक्वल. सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव दैट R इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ. एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स. मान लीजिए कि आपको ऐसी कोई फिगर दी गई है, is the circle, is the second circle, it's the tangents, is the second tangents, exterior point P, it's a A, it's a B, it's a C and it's a D. So now to prove, हमें क्या प्रूव करना है, पहले तो ये देख लेते हैं. We have to prove that AB is equals to CD. Length of AB, फिगर में देख रहे हो, AB का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये AB is equals to CD. ये हमें प्रूव करना है. तो ये कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल. अब पहले तो हम ये लिख सकते हैं हियर PA is equals to PC. How can it possible? By 10.2. Actually both are tangents drawn from exterior point P, PA and PC. Okay, अब हम यहाँ PA की जगह क्या लिख सकते हैं, हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ PA, इसको कैसे डिराइव करेंगे, इट्स एक्चुअली PB माइनस AB. पूरा जो PB है उसमें से हम AB को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट. सेम PC कैसे डिराइव करेंगे, इट्स अ PD माइनस CD. Again I said, how can we get the length of PC? From the PD we will subtract CD. So now actually we know that PB is equals to PD. Why? They are tangents from exterior point P. तो हम यहाँ PB की जगह आइदर PD लिख दे, आइदर PD की जगह PB, तो दोनों सेम ही होगा. सो PB माइनस AB इज इक्वल्स टू PB माइनस CD. So both side PB cancel, so we get minus AB is equals to minus CD. So both side minus is cancel, so we will get AB is equals to CD. इसी क्वेश्चन को यहाँ मैंने PA is equals to PC से स्टार्ट किया है, आप PB is equals to PD से भी स्टार्ट कर सकते हो. सिर्फ फिर यही है कि अगर आप जब PB लिखोगे तो हाउ कैन यू गेट द PB, इट्स अ सम ऑफ PA एंड AB. तो PB की जगह आप क्या लिख सकते हो, PA प्लस PB. सेम PD कैसे मिलेगा, इट्स अ PC प्लस DC. फिर दोनों में आप जानते हो PB की जगह PD लिख दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा. सो अगेन यू विल गेट द AB इज इक्वल्स टू CD. अगेन आई सेड, जैसे मैंने यहाँ PA इज इक्वल्स टू PC से स्टार्ट किया है, वैसे आप PB इज इक्वल्स टू PD से भी स्टार्ट कर सकते हो.
Okay friends.